بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، افطاری کے وقت کھجور پر 1 منٹ کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ آپ نے افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے صرف ایک لفظ پڑھنا ہے، وہی بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی۔ جس کا نصیب ابھی تک نہیں کھل رہا، جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جس کی حاجات پوری نہیں ہوتی، وہ افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے صرف ایک لفظ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسا طاقتور وظیفہ بتاؤں گا کہ آپ نے کبھی ایسا وظیفہ نہ ہی پڑھا ہے اور نہ ہی کبھی کسی نے بتایا ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ عصمت والا، برکت والا مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو بندہ صبح سحری کرتا ہے، سارا دن رب کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے اور شام افطاری کے وقت دسترخوان پر بیٹھ کر جو بھی دعا کرتا ہے، ہر کوئی رب کریم سے اپنے انعام کے لیے دعا کرتا ہے، اور افطاری کے وقت رب کی ذات ہر بندے کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرماتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ سارا دن رب کی رضا کے لیے گناہوں سے بچتا ہے، ہر نعمت کو، پانی اور بے شمار رزق کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے بھی رب کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، زبان سے گناہ کرنے سے بچتا ہے، آنکھوں سے گناہ کرنے سے بچتا ہے، ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور سارا دن رب کو راضی کرتا ہے۔ پھر افطاری کے وقت جب روزہ کھولنے کا حکم دیتا ہے، اس وقت انعامات لینے کا وقت ہے۔ سارا دن آپ نے رب کو راضی کیا، اب افطاری کے وقت رب کعبہ سے انعامات لینے کے لیے رب کعبہ سے سارا دن مانگی دعائیں قبول کروانے کا وقت ہے۔ رب فرماتا ہے، تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اللہ والو، ویسے تو افطاری کے وقت ہر کوئی دعا کرتا ہے، ہر کوئی اپنی حاجات، اپنے مقصد، اپنی خواہش، جس کو جو چاہیے، افطاری کے وقت ہر کوئی جانتا ہے کہ قبولیت کا وقت ہے۔ افطاری کے وقت جب بندہ بھوکا پیاسا نڈھال بیٹھا ہوتا ہے، رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے، رب کریم فرماتے ہیں، جو رمضان کا روزہ رکھ کر ہاتھ اٹھائے، میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں تو مجھے شرم آتی ہے۔ رب خود فرما رہا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے اس بندے سے جو رمضان میں افطاری کے وقت ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجات کے لیے مانگتا ہے، اور میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ اللہ والو، مایوس نہ ہوا کریں، مایوسی کفر ہے، ایک دم دل نہ چھوڑا کریں۔ رب کریم ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہے، اور ہم جو مانگتے ہیں اگر وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں تو رب کی ذات ٹال دیتی ہے۔ اگر رمضان کا روزہ رکھ کر بھی آپ کو وہ ملے جس میں آپ کا نقصان ہو جائے تو اللہ والو، پھر رمضان کے روزوں کا کیا فائدہ؟ وہ ذات آنے والے کل کو جانتی ہے، وہ ذات آنے والے مسائل پریشانیوں کو جانتی ہے۔ اللہ والو، افطاری کے وقت ہر کوئی دعا کرتا ہے، ہر کوئی دسترخوان پر بیٹھ کر رب کریم سے مانگتا ہے۔ آج افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے، یعنی کہ روزہ کشائی سے پہلے، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے، ایک لفظ کا چھوٹا سا عمل ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی۔ اور دوستو، یہ وظیفہ پورے رمضان المبارک میں آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، اتنا خاص ہے، اتنا مجرب اور مستند ہے کہ افطاری کے دسترخوان پر کھجور ہاتھ میں رکھ کر یہ وظیفہ پڑھتے ہی، ایک لفظ پڑھتے ہی، آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آپ رب کریم سے جس حاجت، جس مقصد کو لے کر بیٹھیں گے، انشاءاللہ وہ پورا ہو کر رہے گا۔ جو کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری حاجات پوری ہونے کا نام تک نہیں لیتی، رمضان کا پورا مہینہ ہے، آپ کسی بھی دن یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، کسی بھی دن یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر تو روزانہ کریں گے تو رمضان کی بہاروں، رمضان کی رحمتوں، رمضان کی برکتوں، رمضان کے خزانوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ کم سے کم ہر کوئی افطاری کے وقت صرف ایک بار یہ وظیفہ لازمی کرے۔ آپ کو رب کی ذات اتنا نوازے گی کہ آپ جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے، افطاری کے دسترخوان سے اٹھنے سے پہلے، مغرب کی نماز ادا کرنے سے پہلے آپ کا وہ کام ہو جائے گا، آپ کو خوشخبری مل جائے گی، آپ کی وہ حاجت، آپ کی وہ دعا قبول ہو جائے گی جو آپ یہ وظیفہ کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے پڑھیں گے۔ دوستو، اگر تو آپ کی حاجات پوری ہو جائے تو اس وظیفے کی کتنی طاقت ہے میں بتا رہا ہوں کہ یہ وظیفہ بہت طاقتور ہے، لیکن اس وظیفے کی قبولیت کی وجہ فوراً آپ کی حاجات پوری ہو جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ بندہ صبح سحری سے لے کر شام افطاری تک ذکر اذکار کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، رب کریم کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، ہر شے ہوتے ہوئے تنہائی میں بھی رب کریم سے خوف کھاتا ہے اور اپنے روزے کی حفاظت کرتا ہے۔ رب کریم اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے کہ جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے، روزے دار کے منہ سے آنے والی جو بو ہے، رب کریم فرماتے ہیں وہ مجھے مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔
जन्नत से भी ज़्यादा बेहतर है। जो रोज़ेदार के मुंह से बू आती है, अल्लाह वालों रब्बे करीम अपने प्यारे बंदों से इतनी मोहब्बत फरमाता है कि हर मौके पर गुनाहों की बख्शिश का जरिया बना देता है। कभी शबे बारात को भेज देता है, कभी शबे मेराज को भेज देता है, कभी रजब आ जाता है, कभी शाबान आ जाता है, कभी जुमतुल मुबारक का दिन आ जाता है। आज माह रमज़ान का महीना है, आज रहमतों का महीना है, गुनाहों की बख्शिश का महीना है, आज जहन्नुम की आग से बचने का महीना है। आज मेरी तमाम बहनों, तमाम भाइयों से गुजारिश है, हो सके तो आज ही पढ़ लो। पूरा रमज़ान आपके पास मौजूद है। अगर कोई बंदा माह रमज़ान में रब की रहमतों बरकतों के खजाने खुली आंखों से देखना चाहता है, रब के कमालात को, रब के मौजज़ात को खुली आंखों से देखना चाहता है, तो अफ्तारी के वक्त पूरा रमज़ान ये वजीफ़ा पढ़ लो। चलो मेरे कहने पर सिर्फ एक दिन पढ़कर देखो, आप खुद मजबूर हो जाओगे ये वजीफ़ा पढ़ने के लिए, क्योंकि इस वजीफ़े की इतनी तासीर और ताकत है कि आज तक जिसने पढ़ा रब करीम ने माला माल फरमा दिया, और आज तक जिस बहन भाई को बताया रब करीम ने उस बंदे को इतना नवाजा कि फिर उसकी कोई हाजत बाकी ना रही। आज रब करीम से थोड़ा ना मांगिएगा। एक तो अफ्तारी का वक्त है, रब वैसे ही बंदे से राजी होता है। अफ्तारी के वक्त तो वैसे ही हर दुआ कबूल हो जाती है, हर हाजत पूरी हो जाती है। और जो बंदा अफ्तारी के वक्त खजूर को हाथ में रखकर यह वजीफा, ये एक लफ्ज बताए गए तरीके से पढ़ता है, एक लफ्ज पढ़ने में कितना वक्त लग जाएगा। हमारे यहाँ देखा जाता है कि अफ्तारी के दस्तरखान को 2 से 4 मिनट पहले सजा लिया जाता है, फिर घर के तमाम लोग बैठकर दुआएं करते हैं, रब करीम से अपने इनामात लेते हैं, सारा दिन रोज़ा रखकर रब को राज़ी करते हैं और अफ्तारी के वक्त रब से अपनी इल्तिजा करते हैं, रब से बच्चे की तरह जिद करके मांगते हैं। अल्लाह वालों, आज रब करीम से मांगने से पहले अफ्तारी के वक्त एक खजूर पर यह खास वजीफ़ा मेरे कहने पर पढ़ लो। अल्लाह वालों, आज रब करीम से मांगने से पहले अफ्तारी के वक्त एक खजूर पर यह खास वजीफ़ा, एक लफ्ज़ पढ़ने की देर है, वहीं बैठे बैठे तकदीर बदल जाएगी। दोस्तों, मैं कई सालों कई महीनों की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक लफ्ज़ पढ़ लो, फौरी तकदीर बैठे बैठे बदल जाएगी। अगर कोई बंदा जल्द अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, अपना ज़ाती मकान चाहता है, जल्द कर्ज से निजात चाहता है, मियाँ बीवी में मोहब्बत चाहता है, कारोबारी मसाइल का हल चाहता है, कुछ भी आपकी हाजत हो, कोई भी आपके मसाइल हों, हर इंसान की परेशानी अलग है, जिसका जो मसला है, हर मकसद में कामयाबी के लिए आपने अफ्तारी के वक्त ये वजीफ़ा पढ़ लेना है। तो दोस्तों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। ऐसे बहुत से वसाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। आप तवज्जो कीजिएगा, अफ्तारी के वक्त हर किसी के पास वक्त होता है और तौफीक भी होती है, और खुशकिस्मत और मुकद्दर वाला वो बंदा है जो अफ्तारी के वक्त यह वजीफ़ा पढ़ेगा। अल्लाह वालों, अब करना क्या है, बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर, अफ्तारी के दस्तरखान पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3, 7 या 11 बार दरूद पाक पढ़ना है। इससे पहले अफ्तारी के वक्त की खसूसी दुआ करता हूँ। जो लोग इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करूँगा, अपने आमीन ज़रूर कहना है। हो सकता है कि यह वीडियो हज़ारों लाखों लोगों तक जाए और पता नहीं किसकी आमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए, हम सब का बेड़ा पार हो जाए। ऐ मेरे मालिक और मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। आज रमज़ान में अफ्तारी का वक्त है। आज हर कोई रोज़ेदार भूखा प्यासा तेरी रज़ा के लिए अफ्तारी के दस्तरखान पर बैठा है, तेरे इनामात के लिए झोलियां फैलाए बैठा है। आज जिसका जो मसला है, जो परेशानी है, इन तमाम को अपने गैबी खजानों से मालामाल फरमा दे। ऐ मेरे मालिक मौला, बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा, बे औलादों को औलाद अता फरमा, रमज़ान में जहन्नुम की आग से बचा। ऐ मेरे मौला, तू दिलों के राज खूब बेहतर जानने वाली ज़ात है। आज एक खजूर जो कि अफ्तारी में खाना सुन्नत नबवी है, आज इस खजूर पर एक लफ्ज़ पढ़ते साथ ही आज मुझ समेत हम सब की नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमा दे। ऐ मेरे मौला, रमज़ान का महीना अज़मत और बरकत वाला महीना है। हमारी नस्लों तक रिज़्क़ और दौलत का इंतज़ाम कर दे। हम में से जो भी बीमार है, हर किसी बीमार को शिफाए कुल्ली नसीब फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। आमीन इलाही आमीन। दोस्तों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपना पूरा नाम ज़रूर लिखिएगा।
इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। अब फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अफ्तारी के दस्तरखान पर बैठकर तवज्जो कीजिएगा। अब एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। अब आपने वजीफे को बताए गए तरीके से पढ़ना है, जो निहायत छोटा सा वजीफा है। मेरे बताने और समझाने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन आप ये वजीफा सिर्फ चंद मिनट में पढ़ लेंगे। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप या काट काट कर देख रहे हों, लेकिन अब अफ्तारी के वक्त का खजूर पर खास और शर्तिया अमल बता रहा हूं। अगर आपने वीडियो को स्किप या काट कर देखा तो पूरा साल पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता। ये मौका रमज़ान में अफ्तारी के वक्त मिलता है। फौरी तौर पर अफ्तारी के दस्तरखान पर बैठकर अपने दिल ही दिल में एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दरूद पाक पढ़िएगा। दरूद पाक आपको कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप लोग सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। लेकिन पढ़ना 3 बार है। एक बार हसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व अला आलि मोहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिमा व अला आलि इब्राहिमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मदिन व अला आलि मोहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिमा व अला आलि इब्राहिमा इन्नका हमीदुम मजीद। अब आपने तवज्जो के साथ दरूद पाक पढ़ने के बाद अपने मकसद, अपनी हाजत की नियत करनी है। हर इंसान किसी न किसी हाजत के लिए, किसी न किसी परेशानी के लिए, किसी न किसी तंगदस्ती के लिए वजीफ़ा पढ़ता है। अब आपने जो भी आपकी हाजत है, बेटियां, रिश्तों के लिए, कारोबार के लिए, नौकरी के लिए, शादी के लिए, घर में सुकून और बरकत के लिए, औलाद के लिए, इम्तिहान में कामयाबी के लिए, जो भी आपकी हाजत है, आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। और अब एक खजूर का दाना अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखते हुए आपने सबसे पहले नंबर पर अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को पढ़ना है। अल्लाह का शुक्र करना है कि या अल्लाह तूने अफ्तारी के दस्तरखान पर बैठने की तौफीक अता फरमाई, तूने मेरे दस्तरखान पर बेशुमार नेमतें अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्लाह का शुक्र है। और जो शख्स अफ्तारी के दस्तरखान पर बैठकर अफ्तारी पर दी गई नेमतों पर अल्लाह का शुक्र करता है, अल्लाह शुक्र करने वाले को पसंद करता है। शुक्र करने वाले के माल में, जान में बरकतें आ जाती हैं। अल्लाह शुक्र करने वाले के करीब हो जाता है, शुक्र करने वाले को दोस्त बना लेता है। आज आपने खजूर के दाने पर अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। कितनी बार? सिर्फ 3 बार। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 1 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 3 बार हो गया। 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी पढ़कर अल्लाह का शुक्र करते ही अल्लाह का दोस्त बनने के बाद अब आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, वो वजीफ़ा आज का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे खास वजीफ़ा है। अब अल्लाह का शुक्र करने के बाद जब आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे, अल्लाह के दोस्त हो जाएंगे, अब आपने फौरी तौर पर सूरह कौसर को पढ़ना है। सूरह कौसर एक ऐसी कुरानी सूरत है जिसे पढ़ते ही रिज़्क़ और दौलत का सैलाब आ जाता है। कुरान मजीद में सूरह कौसर सबसे छोटी सूरत है, लेकिन यह इतनी तासीर और ताकत, इतनी मुजर्रिब सूरत है कि इसे पढ़ने के बाद अफ्तारी का दस्तरखान छोड़ने से पहले, नमाज मगरिब अदा करने से पहले, आप खजूर के दाने पर यह अमल करके जिस हाजत की नियत करते हैं, वहीं बैठे बैठे तकदीर बदल जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी को सूरह कौसर जुबानी आती है, और जब कोई बंदा रोज़े की हालत में इसको पढ़ता है, अफ्तारी के दस्तरखान पर पढ़ता है, रब फरमाता है कि अफ्तारी के वक्त खजूर पर सूरह कौसर पढ़ने वाले पर 300 रिज़्क़ के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सूरह कौसर पढ़ने वाले पर अगर कोई आजमाइश है, कोई तंगदस्ती है, उठा ली जाती है। अफ्तारी के वक्त खजूर पर सूरह कौसर पढ़ने की देर है, आपके रास्ते में खड़े पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाते हैं, आपके दुश्मन के मुंह पर ताले लग जाते हैं, आपके ताई, चाचे, मामी जो आपके रास्ते में रुकावट बन जाते हैं, सूरह कौसर खजूर के दाने पर पढ़ते ही अल्लाह उन्हें अपनी ही किसी मुसीबत में डाल देता है। आपके बंद कारोबार चल पड़ते हैं, दुकान पर ग्राहकों का रश लग जाता है, बिगड़े काम संवरना शुरू हो जाते हैं, बेड़े पार हो जाते हैं, वो जो कई सालों से नहीं मिल रहा, आज अफ्तारी के वक्त खजूर पर सूरह कौसर पढ़ते ही मिल जाएगा। आज हर कोई रिज़्क़ और दौलत का तलबगार है। आज महंगाई के दौर में पैसे के बगैर जीना नामुमकिन है। घर का गुजारा तक नहीं होता। जिनके घर में एक वक्त का खाने को है,
दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, जिनके हालात बेहतर होने का नाम तक नहीं ले रहे, जिनके मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। इनसे मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आपने अफ्तारी के वक्त खजूर मुंह में डालने से पहले, रोज़ा अफ्तार करने से पहले सूरह कौसर पढ़नी है। और आपने सूरह कौसर सिर्फ 3 बार पढ़नी है। और 3 बार सूरह कौसर पढ़ने में कितना ही वक्त लग जाएगा। अगर 3 बार सूरह कौसर पढ़ने से 300 रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाएं, हमारे आने वाले कल, हमारे फ्यूचर में हमारी तरफ आने वाली परेशानियों से, रुकावटों से, हर तरह के मसले मसाइल से जान छूट जाए, हमारी बीमारियों को शिफाए कुल्ली नसीब हो जाए, पूरे साल के लिए रिज़्क़ और दौलत का इंतज़ाम हो जाए, हर घर का रिज़्क़ और दौलत वसी हो जाए, हर घर में मौजूद हर बच्चा दौलतमंद हो जाए, तो अल्लाह वालों इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। अगर मेरा बस चलता, मैं आप में से हर किसी को अफ्तारी में बुलाकर एक खजूर पर यह खास वजीफ़ा पढ़ने की तलकीन करता। अगर मेरे बस में होता तो मैं आपको हाथों से पकड़कर मुसल्ले पर बैठाता और कहता, आप और मैं, हर कोई अफ्तारी के वक्त दुआ करता है, हर कोई अफ्तारी में खजूर खाता है, हर कोई अफ्तारी के वक्त 2 से 3 मिनट पहले दस्तरखान पर बैठ जाता है। आपने अफ्तारी के दस्तरखान पर बैठकर खजूर को हाथ में रखते हुए पहले नंबर पर अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी को पढ़ना है। फिर आपने सूरह कौसर को पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर। 1 बार हो गया। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर। 2 बार हो गया। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर। 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने खजूर पर 3 बार सूरह कौसर पढ़कर खजूर पर फूंक मारनी है और 3 बार सूरह कौसर पढ़ते हुए आपने आंखों को बंद करना है, क्योंकि आपने सारा दिन रोज़ा रखकर अल्लाह से तमाम के तमाम गुनाहों से तौबा करके अल्लाह को राज़ी कर लिया है। अब अफ्तारी के वक्त अल्लाह रोज़ेदार को इनाम देता है। अब आप खजूर पर सूरह कौसर पढ़कर जो मांगेंगे अल्लाह आपको ज़रूर अता फरमाएगा। अब आपने तवज्जो के साथ सूरह कौसर को 3 बार पढ़ते हुए आपने किसी से बात नहीं करनी। यूँ महसूस करें कि दुनिया से आपका ताल्लुक़ ख़त्म। आज अगर किसी को बेटा चाहिए, बेटा मांगे। औलाद के लिए परेशान है, औलाद मांगे। कारोबार में तरक्की के लिए पढ़ें, दुकान पर ग्राहकों के रश के लिए पढ़ें, बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़ें, इम्तिहान में कामयाबी के लिए पढ़ें, घर में सुकून और बरकत के लिए पढ़ें, जादू जिन्नात से निजात के लिए पढ़ें, अल्लाह की गैबी मदद के लिए पढ़ें। इंशाअल्लाह सिर्फ 3 बार सूरह कौसर पढ़ते ही मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे, रातों रात कर्जदारों के कर्ज उतर जाएंगे, रातों रात बेटियों के रिश्ते हो जाएंगे, रातों रात मनपसंद नौकरी शादी हो जाएगी। जिस दुकान पर ग्राहक नहीं आते, अफ्तारी के वक्त औरत अपने मर्द के लिए पढ़ ले, बच्चा पढ़ ले, बूढ़ा पढ़ ले, इंशाअल्लाह दुकान पर ग्राहकों का रश लग जाएगा। आज जिसका नसीब नहीं बदल रहा, बेबस है, लाचार है, मजबूर है, अफ्तारी के वक्त ये दुआ हर कोई पढ़ता है। ये दुआ वाजिब भी है, हर कोई अफ्तार के वक्त ये दुआ पढ़ता है। तीसरे और आखिरी नंबर पर अफ्तारी की दुआ पढ़कर वजीफ़ा मुकम्मल कर लेना है, रोज़ा अफ्तार कर लेना है। यानी अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिकामन्तु वालैका तवक्कलतु वाला रिज़्क़ी का अफ्तरतु। आपने इस दुआ को, जो अफ्तारी की खसूसी दुआ है, सिर्फ 1 बार पढ़कर खजूर पर फूंक मारनी है और आपका वजीफ़ा मुकम्मल। अब वजीफ़ा मुकम्मल करने के बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आज तक ना कभी किसी ने बताई है और ना ही कोई बताएगा। पहले नंबर पर अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी, फिर दूसरे नंबर पर सूरह कौसर और तीसरे नंबर पर अफ्तार की दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिकामन्तु वालैका तवक्कलतु वाला रिज़्क़ी का अफ्तरतु। अगर 1 बार पढ़ने का वक्त है तो 1 बार पढ़ ले, नहीं तो 3 बार पढ़कर खजूर पर फूंक मारते ही आपका वजीफ़ा मुकम्मल। अब आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर उतना ही दुरूद पाक पढ़िए जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। अमल मुकम्मल होने के बाद अब आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, दोनों हाथों को उठा लेना है और यूं मंगता बनकर जिद करके आंखों में आंसू लिए रब्बे काबा से मांगना है। अब आप हाथ उठाकर जो मांगोगे, आप दिल में जो मुराद लेकर आओगे, जो हाजत लेकर आओगे, अफ्तार से पहले आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। लोग अफ्तारी की दुआ भी करते हैं, खजूर पर यह खास वजीफ़ा भी पढ़ लेंगे, लेकिन हाथ उठाकर नहीं मांगेंगे। अगर आप वाकई अपनी तकदीर के बंद ताले खुलवाना चाहते हैं तो खजूर पर यह खास वजीफ़ा करने के बाद दोनों हाथ उठाकर रब्बे काबा से सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें।
افطاری کا وقت ہے۔ روزے کی حالت میں جب بندہ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہے، صدا لگائے تو اللہ کریم آخری آسمان پر آ کر صدا لگاتا ہے کہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ رب راضی ہے، تو جو مانگے گا تیرے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے حق میں بھی فرشتوں کو بھیجے کہ جاؤ فرشتوں، یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، تو یقین کیجئے گا ایک دن افطاری کے وقت یہ وظیفہ میرے کہنے پر پڑھو، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا یہ وظیفہ کتنا طاقتور ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر جب تک افطاری کی اذان نہ ہو جائے آپ نے یہ دعا کرتے رہنا ہے، جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لو، اور افطاری ہوتے ہی پھر کھجور منہ میں ڈال کر روزہ کھول لو۔ انشاءاللہ تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، جس طرف قدم بڑھاؤ گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔